The NDA continued brainstorming on seat sharing for Bihar Assembly polls on Sunday. BJP and its ally in Hindustani Awam Morcha (HAM), led by former Chief Minister Jitan Ram Manjhi, held several rounds of talks to reach an agreement. Now, according to media reports, BJP and HAM were learned to have clinched a seat sharing deal. The agreement was said to have been reached at a meeting between BJP's in charge for Bihar Assembly polls, Anand Kumar, Party General Secretary in charge of the state, Bhupendra Yadav, and Jitan Ram Manjhi at Bihar Niwas. Manjhi also played down differences with the BJP over the number of seats offered to him, saying that he is not upset. Sources in Manjhi's party have said that BJP has agreed to give them some more seats than it had earlier offered. Meanwhile, Shiv Sena has also announced to contest Bihar Assembly elections. Party leader Sanjay Raut said that the party will fight elections independently. Our correspondent Rajesh Raj is joining us from Delhi. Also, we'll have Ritu Verma joining us from Bihar. Ritu, we'll come to you first. Ritu, I'll come to you first. We've just told our viewers that there are reports in the media that a seat-sharing deal has been clinched between the parties there, the BJP and the HAM. You confirm the reports for us, and by what and how soon can we expect the announcement to be made out formally? Ritu, if you can hear me, we've just told our viewers that there are reports in media which suggest that a seat-sharing deal has been clinched between the parties there, the BJP and the HAM. We would want you to confirm the reports for us and also let us know by what time or in how many days could we expect the announcement to be made formally in this regard. प्रीति, अगर आप अपना सवाल एक बार फिर दोहरा सकें क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Ritu, if I'm audible to you, we would want you to confirm the reports for us when we talk of a deal being clinched between the HAM and the BJP, and when can we expect a formal announcement on that? देखिए, लगातार बातचीत का दौर चल रहा है और बहुत साफ एनडीए के साथ की जो तीनों सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने बहुत साफ करा है शुरुआती समय से ही, जब से ये गठबंधन हुआ, चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, उससे पहले से कि सीटों को लेकर और साथ चुनाव लड़ने को लेकर कहीं कोई मतभेद किस्म की चीज़ नहीं है, कोई पेच जैसी चीज़ नहीं है, एक सहमति की एक बातचीत है जो लगातार चल रही है. और जहाँ तक रही बात जितिन राम मांझी के साथ जो कल के दौर की जो बातचीत रही, तो जितिन राम मांझी और रामविलास पासवान ये दोनों ही बिहार में दलितों की जो एक बड़ी संख्या है और उनके नेता कहे जाते हैं. रामविलास पासवान के पास अपने 6 सांसद हैं, वो एक लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं. और वहीं जितिन राम मांझी जो है पिछले कह सकते हैं कि कुछ वक्त में जिस तरह से यहाँ पर महादलितों के एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि में, तो दोनों ही नेता एक कह सकते हैं बड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं. और जितिन राम मांझी का लगातार कहना है कि वो भी महादलितों के नेता हैं और रामविलास पासवान के नेतृत्व और उनकी हैसियत के ही बराबर उनको एक सम्मानजनक सीट का शेयरिंग उन्हें मिलना चाहिए. और यही बातचीत का दौर जारी है जिसमें आज दिन में पटना उन्हें आना था प्रीति, और अब वो शाम तक की उनकी फ़्लाइट हो गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब लगभग अंतिम दौर की बातचीत है. क्योंकि देखिए, दूसरी बात है कि 12 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव है. एक तरफ दिल्ली में ये बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ अगर बात करें कि राजधानी में, हम इस समय बेगूसराय में, लेकिन पटना में लगातार बातचीत चल रही है, उम्मीदवारों के नामों के चयन पे बातचीत चल रही है, कोर कमेटी की बैठक हो रही है और मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होनी है, जिसपे उम्मीदवारों के नामों के चयन पर एक तरह से आखिरी मुहर लगेगी. तो दोनों तरफ कवायद जारी है और ये देखा जा रहा है कि आज शाम तक हो सकता है सीट शेयरिंग का एक जो अनाउंसमेंट है वो हो जाए और सामूहिक रूप से सहमति के साथ ये अनाउंसमेंट आज शाम को होने की संभावना है. Right, Ritu, also, poll fever there in the state must be heating up. Give us a brief overview of the latest political developments there. We believe the BJP state unit met yesterday.
देखिए, हम इस समय बेगूसराय में हैं और जिस तरह से बिहार की जनता को अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार हो रहा था, अब इंतजार है एनडीए गठबंधन की सीटों का। ये तो हुई एक सूरत जो चुनाव से पहले की। और महागठबंधन की अगर बात करें, महागठबंधन लगातार बातचीत का दौर जारी है। कल भी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बातचीत होती रही। सामूहिक रूप से वो भी 1 या 2 दिन में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। चरणबद्ध तरीके से करेंगे। पहले चरण के चुनाव की पहले होगी और उसके बाद आगे के चरणों के चुनाव की होगी। अगर जनता की बात करें तो जनता अब इंतजार कर रही है कि कौन सा उम्मीदवार कौन से क्षेत्र में किस पार्टी का चुनाव लड़ेगा, क्योंकि गठबंधनों की राजनीति, बदले हुए समीकरण बहुत साफ हो गए हैं। अब प्रीति, अब देखना यह है कि किन सीटों पे कौन से उम्मीदवार, और जिस तरह से कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में जातिगत राजनीति की एक कह सकते हैं कि उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो किन जातियों के नेता को तमाम पार्टियां उन सीटों पर उतारती हैं, ये देखने की वाली बात होगी। और इसी का इंतजार अब जनता कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि जनता के मुद्दे एक तरफ, लेकिन तमाम विधानसभा क्षेत्रों पे और खासकर पहले चढ़ने की जो 49 सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 49 सीटों में कह सकते हैं कि तकरीबन 42 ऐसी सीटें हैं जिस पे 2010 में गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। और इसमें से ज्यादातर सीटों पे जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जीती थी। जेडीयू और आरजेडी के बीच में एक टक्कर 2010 में देखी गई थी कि ज्यादातर सीटों पे दूसरे नंबर पे रहने वाली पार्टी आरजेडी थी। Yes, yes. So the political temperatures there soaring. मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जब उम्मीदवारों के घोषणा की जाएगी और ये बताया जाएगा कि किस सीट से कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में। Yes, so all eyes now on that formal announcement. Thank you so much, Ritu, for joining us from Bihar. Rajesh is now joining us from Delhi. Rajesh, we were just interacting with Ritu, and she said that on Tuesday, that is tomorrow, we could have a meeting here in Delhi wherein the names of the candidates could be announced, and also she said that there are expectations that by today evening we could have a formal announcement on that. You're in Delhi. Confirm the reports for us first. देखिए, रात भर अगर हम बात करें तो बैठकों का दौर चलता रहा और जो बीजेपी के जो प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रभारी अनंत कुमार, पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव और पेट्रोलियम मंत्री सह प्रभारी हैं चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, इन तीनों नेताओं की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ लगभग 45 मिनट से भी ज़्यादा समय तक बिहार निवास में बातचीत हुई। और उसके बाद ये तीनों नेता जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनके घर पर गए, उनको जाकर उन्होंने बताई। जो खबरों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, सूत्रों के मुताबिक, कि जीतन राम मांझी और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके बीच कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो अंतिम दौर में है। हमारे साथ महुआ के विधायक हैं और जीतन राम मांझी पार्टी के कद्दावर नेता हैं रविंद्र राय, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि आखिर जो जीतन राम मांझी और बीजेपी अध्यक्ष के बीच जो बातचीत चल रही है उसका लब्बो लुआब क्या है। रविंद्र जी, क्या लगता है कि जो बातचीत चल रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, बातचीत बहुत सकारात्मक है और सभी मुद्दों पर आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी साथी है उनके बीच में बहुत ही पॉजिटिवली बातचीत चल रहा है। और हम लोग का लक्ष्य है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के कुशासन के राज को अंत करना। तो श्री जीतन राम मांझी जी पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम लोग बिना शर्त के समझौता करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और श्री अमित शाह जी पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ भी अच्छा होगा और कोई कंडीशन के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है। उद्देश्य जो भारतीय जनता पार्टी की है कि जंगल राज को लौट के नहीं आने देना, नीति अहंकारी जो नीतीश कुमार है उनको लौट करके नहीं आने देना और बिहार की जनता के हित में काम करना। इसी के लिए हर तरह के लगातार ये खबर आ रही थी कि रामविलास पासवान को ज़्यादा सीटें देने के वजह से जीतन राम मांझी नाराज बताए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आंकड़ा कहां तक पहुंचने की संभावना है? कहा जा रहा है कि 20 सीट आपको दी जा रही है, 15 सीटें दी जा रही हैं और 5 बीजेपी के सिंबल पर विधायक लड़ेंगे। कितनी सच्चाई है? देखिए, आपका अच्छा प्रश्न है कि आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और श्री जीतन राम मांझी जी के बारे में इस तरह की बातें मीडिया के जरिए बाहर आ रही है। श्री जीतन राम मांझी जी इससे नाराज़ नहीं है, उनके समर्थकों में भारी उबाल है कि बिहार के 9 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम किए। शिक्षकों का मुद्दा हो, संवेदकों का मुद्दा हो, विकास मित्र हो, टोला सबक हो, तालीमी मरकज हो, किसानों को फ्री बिजली देने का मुद्दा हो, और जिस शालीनता के साथ विधायकों को भी वो इजी गोइंग मिलते थे,
उनकी बात को सुनते थे तो लगता था कि फिर से लोकतंत्र वापस आ गया है बिहार में। क्या सारे तो विधायक जो हैं उनके- एकोमोडेट हो जाएंगे? उनके समर्थकों में एक चिंता थी, उनके बहुत बड़ा कौम महादलित का जो 18% का जो एक कौम है, 4% अगर पासवान जाति को भी मिला दिया जाए तो 22% एक कौम में ये फीलिंग था कि भाई हमारा इतना बड़ा आबादी है तो उसके हिसाब से हमको प्रतिनिधित्व मिलेगा। यही चूँकि क्या है, जीतन राम मांझी एक लोकतांत्रिक व्यक्ति है, अपने सहयोगियों के साथ बैठ करके अच्छी तरह से बात करते हैं। उनको ये नहीं होता है कि ये विधायक है, एक और ग्रुप है, ये नहीं है, सभी को दिल की बात खुल करके करते हैं। राजेश, तो इनके समर्थकों और इनके विधायकों और इनके जो पार्टी के बड़े नेता हैं, इनमें नाराजगी थी कि भाई इतना बड़ा मेरे पास वोट बैंक जगह मिल जाएगी, ये माना जाए। देखिए ये बात पहले ही सॉर्ट आउट हो चुका है कि सभी साथियों को जो श्री जीतन राम मांझी जी के साथ में है उनको जगह, ये पहले ही मैटर ये क्लोज हो चुका है कि सबको जगह मिल रही है। यस, देखिए, जो महुआ के विधायक है रविंद्र राज जीतन राम मांझी के समर्थक हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं, उनका साफ कहना है कि जो उनके दल के साथी हैं और जो उनके विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग उनको एकोमोडेट करने का मन बना लिया है और बीच का रास्ता जो है वो जल्द से जल्द निकल जाएगा। yes, Rajesh, thank you for those inputs. Thanks for joining in. We'll get back to you again during the day to get more details. Those were our correspondents. Ritu was joining us from Bihar and Rajesh Raj was joining us from Delhi. Ritu told us that by Tuesday we could expect a meeting in Delhi wherein the names of the candidates could be announced, and by today evening we could have a formal announcement on the seat sharing when we talk of the alliance between the BJP, the NT and the HAM. Now our correspondent Rajesh Raj joined us from Delhi and he made us interact with Ravindra Raj, who was from the Manji factor, and he talked of how yesterday BJP leaders had a grilling meeting with Jeetan Ram Manji and they said that they have reached and they have clinched a seat sharing agreement. However, Ravindra Raj also talked of how there could be a disagreement in the supporters of the Manji faction, but Manji has rejected all the disagreements and has said that he has complete faith in the BJP and there has been an alliance without any condition. This has been underlined by Jeetan Ram Manji. So we got those updates for you from Bihar, from developments on Bihar politics. We'll keep updating you as and when the developments take place.